السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 89 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الاعراف آیت 161 سے آیت 180 تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نیسا میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم کیا ہے جو ہمارے پاس آ چکی ہے، یہ ایک نور ہے، ایک دلیل ہے، ایک برہان ہے اور نورم مبینہ ہے، یعنی بالکل واضح ایک کھلی ایک روشن دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس کی زندگی میں روشن دلیل آ جاتی ہے، جس کی زندگی میں کھلی ہوئی روشنی آ جاتی ہے، تو پھر ایسا وہ شخص ہے نا، اس کی زندگی میں کوئی اندھیرا نہیں رہتا ہے۔ اب جیسے آپ میدان بھی کسی کھڑے ہیں اور وہاں پہ آپ کو سورج کی روشنی مل رہی ہے نا، تو یہ امپاسبل ہے کہ آپ کو اندھیرا چھو جائے، الا یہ کہ آپ خود ہی وہاں اس روشنی کو چھوڑ کے کسی گفاؤں کے اندھیرے میں چلے جائیں نا۔ تو جو بھی قرآن کریم کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو غور فکر کرتا ہے، اس کی زندگی کے لائمی اور جہالت کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، زندگیاں روشن ہو جاتی ہیں، اور وہ چیزیں اس کو معلوم ہو جاتی ہیں جو اتنے لمبے ٹائم سے وہ نیکی سمجھ کے وہ کر رہا ہوتا ہے، اور کیونکہ اس کی زندگی میں قرآن کریم جیسا نور مبین آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ہمارا پڑھنا پڑھانا اور اس کو یہاں پہ جو وقت لگاتے ہیں اس کو قبول فرمائے۔ ہم سب کے عمل میں اس قرآن کریم کو ہم سب کے عمل میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے وہ ڈھال دے اور ہم سب کے درجات کی بلندی کا باعث بنا دے، یہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، اور ہم سب کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں ہم سب، اور ہم سب کی اولادیں بھی ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ اعراف آیت نمبر 61 161 to 180۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 161، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں تم رہو بسو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور حتتن کہتے جانا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے تم داخل ہونا، اور ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ آیت 162 دیکھیں، لیکن ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے جو کچھ کہا گیا تھا اس کو بدل ڈالا، تو ہم نے بھی ان پر آسمان سے ایک آفت بھیجی اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ تو آیت نمبر 160 سے آیت نمبر 162 تک کی وہی باتیں بیان کی گئی ہیں جو ہم پہلے بھی سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر جو بنی اسرائیل تھے ان کی نافرمانیوں کے بارے میں ذکر ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کو وہ کیا کرتے تھے، جو ان سے کہا جاتا تھا اس کو توڑ مروڑ کر کے دوسرے الفاظ میں بدل دیتے تھے۔ بنی اسرائیل پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات تھے، لیکن بدلے میں انہوں نے کیا کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی بات نہیں مانی، نافرمانیاں کی، اور حد سے گزر جانے والی یہ قوم تھی۔ آیت 163 دیکھیے، اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیے جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ لوگ سبت یعنی سنیچر کے معاملے میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے، جب ان کے سبت کے دن ان کی مچھلیاں کھلے طور پر پانی کے اوپر آ جاتی تھی، اور جو ان کے سبت کا نات ہوتا تھا تو وہ ان کے پاس نہ آتی تھی۔ اس طرح ہم نے ان کی آزمائش کی اس لیے کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہاں ان کی تیسری نافرمانی اور اخلاقی دینی پستی کو بیان کیا گیا ہے، اور یہاں سے واقعہ سبت شروع ہو رہا ہے۔ سبت یعنی ہفتے کے دن کا
واقعہ. تو بنی اسرائیل کا یہاں سے ہفتے کے دن کا جو واقعہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو عذاب سے بچنے کے لیے برائیوں سے ان کو روکنا ضروری تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ تم نا ہفتے کا دن تم شکار مت کرنا. ان آیات میں اصحاب سبت کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ آیت نمبر 163 to 166 تک کی اصحاب جو سبت کا واقعہ بیان ہوا ہے اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک قبیلے سے تھا جو سمندر کے کنارے آباد تھا. ٹھیک ہے. تو جو سمندر کے کنارے ان کا جو قبیلہ تھا وہ آباد بھی تھا اور جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں بھی پڑھ چکے ہیں. ان کا ذکر آیا تھا وہاں پہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بحر قلزم کے قریب ایک یہودی بستی والوں کے سنیچر کے دن کی مچھلی کا شکار حرام کر دیا گیا تھا ان کے اوپر اور ان کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے. لیکن آزمائش ایسی مبتلا تھی کہ وہ آزمائش میں کہ مچھلیاں سنیچر والے دن ہی خوب اوپر آ جاتی تھی اور اس سمندر کی سطح کے اوپر تیرنے لگتی تھی اور دوسرے دنوں میں مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی. تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں پورے نہیں اترے اور ایسا طریقہ اختیار کیا کہ وہ سنیچر کے دن مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے کوششیں کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ ہیلے بہانہ کرنے لگے. انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ جمعے کے دن جو بھی نیٹ ہوتا تھا جال ہوتا تھا یا گڈھے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ گڈھے سمندر کے کنارے گڈھے کھود دیتے تھے جس سے مچھلیاں پھسل پھسل کے گڈھوں میں گر جاتی تھی. کچھ کہتے ہیں کہ وہ جال بچھا دیتے تھے. تو اللہ عالم کچھ بھی طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ وہ جمعے کے دن اس کو تک جو ہے شکار کا جو طریقہ ہے وہ کر لیتے تھے اور وہ جا کے اتوار کے دن اس کو نکال لیتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے اختیار کیا تھا تو تاکہ وہ پھر اتوار کے دن اس شکار کو نکال سکے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش میں اس لیے مبتلا کیا کیونکہ وہ ان کے پچھلے گناہ کافی بڑے تھے. تو پچھلے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ ان کی سرکشی کیا تھی کھل کر سامنے آ جائے اور عذاب کے وہ مستحق بن جائیں. آیت دیکھیں آیت نمبر 164. اور جب ان کے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کیے جا رہے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے ہی والا ہے یا انہیں سخت عذاب میں گرفتار کرنے والا ہے تو وہ کہنے لگے اپنے رب کے سامنے عذر ثابت کر سکے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے. تو یہاں پہ اس آیت میں دراصل ایسے جو ہے واقعے کا بیان ہے کہ اس میں 3 گروپ کے بارے میں بات ہے اور جو یہ گروہ ہے جو ایک پورا یہ قبیلہ جو تھا یہ کہاں آباد تھا تو اس بستی کا نام دراصل کیا تھا؟ ایلا تھا. ٹھیک ہے. اس بستی کا نام ایلا تھا جو بحر کلزم کے کنارے آباد تھی. اس بستی کا نام ایلا تھا جو بحر کلزم کے کنارے پر آباد تھی. بحر کہتے ہیں عربی میں سمندر کو اور جو سمندر کا نام ہے وہ کیا تھا؟ کلزم تھا. آج کل یہاں پر اسرائیل کی بندرگاہ ہے. اس بستی کے رہنے والے اسرائیلی جو لوگ تھے مچھلی کے شکار میں بٹ گئے تھے. مچھلی کے شکار کے معاملے میں 3 جماعتوں میں وہ بٹ گئے تھے. دراصل ان کا معاشی جو کاروبار تھا وہ مچھلی کا شکار کرنا تھا لیکن آزمائش یہی تھی کہ سنیچر کے دن ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے روکا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جو سنیچر کا دن ہے آپ کی عبادت کا دن ہے آپ اس میں عبادت کریں سارے بزنس کے کاموں کو سارے تجارتی کاموں کو ترک کر کے صرف اور صرف آپ اس دن اللہ کی عبادت کریں جیسے ہمارے کے جمعے کا دن ہوتا ہے ان کے یہاں سنیچر کا دن تھا. تو ان میں 3 گروپ تھے. پہلا ایک جو گروپ تھا ایک جو جماعت تھی جن کی تعداد 70,000 تھی جنہوں نے یہ نافرمانی کی اور مچھلی کا شکار سنیچر کے دن ہی کیے یعنی مچھلی کو انہوں نے پکڑ لیا. جمعے کے دن جال بچھایا طریقہ اختیار کیا شکار کا اور سنڈے کے دن جا کر کے اس کو شکار کو نکال لیا. ہیلے بہانے سے انہوں نے یہ کام کیا. دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے نہ نافرمانی کی اور نہ ہی دوسروں کو روکا. ٹھیک ہے. دوسرا گروہ وہ تھا جس نے نہ نافرمانی کی اور نہ ہی گناہ کرنے والوں کو روکا. تیسرا گروپ تھا جو تیسری جماعت تھی انہوں نے نہ ہی شکار کیا اور ساتھ ہی دوسروں کو منع کیا اور شکار کرنے والی جماعت سے وہ الگ بھی ہو گئی. تو جو پہلا گروہ تھا تو اس نے کہا کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لِلَّهِ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. یہ جس نے کہا تھا یہ پہلا گروہ تھا. یہ جس نے کہا تھا یہ دوسرا گروہ تھا یعنی کہ جو برائی ہوتے ہوئے دیکھ تو رہے تھے لیکن وہ اس کو روک نہیں رہے تھے. جو مچھلی کا شکار کر رہے تھے یہ دوسرا گروہ تھا جنہوں نے
काम होते हुए देखा लेकिन बुराई को रोका नहीं। तो दूसरा जो तीसरा गिरोह था, जिन्होंने ना गुनाह किया और फिर जो गुनाह करने वाले उनको रोका, जो तीसरा ग्रुप था, उन्होंने कहा कि क़ालू माज़िरतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तक़ून। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे रब के रोज बरोज उज्र करने के लिए और इसलिए कि शायद कि ये डर जाए, यानी कि उन्होंने दावत और तबलीग का काम शुरू किया इसलिए कि ताकि जो है ये जो काम हो रहा है, गुनाह का काम हो रहा है, कि इनकी इस्लाह हो जाए और ये अजाब से अल्लाह के बच जाए। आप देखिए कि पहली जो ग्रुप था वो क्या था, नाफरमानों का था, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। दूसरा गिरोह वो था, उसमें जो दरअसल ये सालिहीन थे, ये नेक लोग थे, ये अच्छे लोग थे, ठीक है। दूसरी जो जमात के जो लोग थे, अच्छे लोग थे, नेक लोग थे। और ये कहा कि उनकी जो जमात में थे, जो दूसरी जमात वालों ने तीसरी जमात से कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत कर रहे हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है, जिन्हें अल्लाह तबारक ताला अजाब देने ही वाला है। और ये बात उन्होंने अपनी सिर्फ और सिर्फ गुमान की बुनियाद पे की थी ना। वो जानते थे कि जब भी कोई नाफरमानी करता है तो अल्लाह तबारक ताला का अजाब उनके पास आकर रहता है, वो हलाक हो जाता है। यानी जो दूसरा ग्रुप था वो ये जानता था कि नाफरमानी करने वाली कौम खत्म हो जाती है, इसीलिए उन्होंने जो थर्ड ग्रुप है उनको रोका था कि तुम उनको क्यों रोकते हो, ये जो कर रहे हैं ना ये तो भुगतेंगे। लेकिन तीसरा गिरोह जो था वो क्या था, वो ना नाफरमानी करने वाला था और दूसरों को बुरे काम से रोकने वाला भी था। क़ालू माज़िरतन इल्ला रब्बिकुम वलअल्लकुम यत्तकून। तो तीसरी जमात ने क्या जवाब दिया कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अल्लाह के नजदीक हमारा उज्र साबित हो जाए और मुमकिन है कि शायद ये लोग रास्ते पर भी आ जाए, हिदायत पा जाए। वो अपना काम करते रहे बिना किसी जो है बिना किसी उज्र के अपने काम को सरअंजाम वो देते रहे। तो आप देखिए कि नेकी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप देखिए कि सामने वाला अगर आपके कोई बुराई कर रहा है ना, तो आपको उसको रोकना भी ज़रूरी होता है। अगर आप सामने बुराई होते हुए देखेंगे और आप खामोश रहेंगे, तो फिर क्या होगा? ये तो फिर बड़ा ही जो है ना बहुत बड़ा घाटा हो जाता है इंसान का, जिसके बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। आप देखिए कि जो 3 ग्रुप थे, 3 ग्रुप के बारे में बात हो रही है। जो दूसरा ग्रुप था, वो क्या था ना, उन्होंने नाफरमानी की, वो काम भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने दूसरों को उस गुनाह से करने से, नाफरमानी करने से रोका भी नहीं। लेकिन ये सालिहीन का जो है गिरोह था। तो आयत देखिए, आयत नंबर 165। फिर जब वे भूल गए और फिर जब वे उसे भूल गए जो नसीहत उनको की गई थी, तो हमने उन लोगों को बचा लिया जो लोग बुराई से रोकते थे, और जालिमों को उनकी नाफरमानी की वजह से सख्त अजाब में पकड़ लिया गया। तो जिन्होंने नाफरमानी की ना, तो उन लोगों ने जो है अच्छे लोगों की एक भी बात नहीं सुनी और अपने गुनाहों पर वो जमे रहे। जो थर्ड ग्रुप की, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी नाफरमानों ने, और वो अपने गुनाहों पर जमे रहे। तो अल्लाह तबारक ताला ने उन नेक लोगों को तो बचा लिया, ठीक है, और जालिम और नाफरमान जो उनके गुनाहों की वजह से सख्त उन पे अजाब डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो तकब्बुर करते थे और वो गुनाहों पे जमे भी रहते थे, ठीक है। आयत 166 देखे। और जब आपके रब ने खबर दी कि वो क़यामत के दिन उनके फिर जब वे सरकशी के साथ वही सब करते रहे जिससे उनको रोका गया था, तो उनसे कहा गया कि तुम जलील और बंदर बन जाओ। आयत नंबर 66 देखिए कि उनको जो है ना क्या बना दिया गया, सजा के तौर पर जलील और बंदर बना दिया गया, उनकी सूरतों को मस्ख करके, ठीक है, मस्ख, इनकी सूरतों को मस्ख कर दिया गया, मिटा दिया गया। जो असली सूरत थी उसकी जगह वे बंदर की सूरत लाके इनको बंदर की सूरतें में इनको जो इनकी शक्लें हैं वो बना दी गई। तो जो जालिम जो कौम थी, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से उन पर अजाब आया और उनकी सूरतों को मस्ख कर दिया गया। आप देखिए कि जो बहुत से लोगों का ये कहना है जो पहले जो बंदर थे वो ये थे, ये वो थे, जो हम पहले इंसान थे, फिर मुसलमान थे और फिर बंदर थे ना, ये सब जो है ना, ये बहुत दरअसल ये गलत बात है। जो आज बंदर है ना, वो हकीकी बंदर हैं, और जो यहाँ जिन बंदरों की बात हो रही है दरअसल ये अजाब वाली कौम थी। तो अल्लाह तबारक ताला ने इनको जो है इनकी सूरतें मस्ख की, और फिर कुछ ही दिन ये जिंदा रहे, 3 दिन या हफ्ता भर। उसके बाद क्या हुए, अल्लाह तबारक ताला ने इन सबको हलाक कर दिया, क्योंकि अजाब जिनके ऊपर आता है ना उनको हलाक कर दिया जाता है। आज हमारे और आपके बीच में जो बंदर है ना, ये वो बंदर नहीं है, ठीक है। इनके ऊपर अजाब आया था, इनकी सूरतों को बिगाड़ करके इनकी शक्लें बंदर की जैसी बनाई गई, और इनको इनको तकलीफ पहुंची, इनके ऊपर अजाबों का सिलसिला आया, फिर इनको खत्म भी कर दिया गया, इनको हलाक भी कर दिया गया बंदर बना के। तो इस तरीके से इस कौम को खत्म कर दिया गया। तो जो जालिम और नाफरमान को उनके गुनाहों की वजह से सख्त अजाब में मुब्तला किया गया। क्यों?
क्योंकि दरअसल वो अपने गुनाहों पर जमे रहे, और अजाब से सिर्फ वही लोग बच सके जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, जिन्होंने अल्लाह की इताअत की और उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। और यहाँ तक कि जो है उन्होंने बुराई को भी रोका था। लेकिन जो दूसरा गिरोह था, जो दूसरी जमात थी, जो नेक लोगों की थी, लेकिन उन्होंने किसी को बुराई से नहीं रोका था, तो उनके बारों में ना इनके बारे में मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये भी उन्हीं जो नाफरमान कौम है उनके साथ हलाक कर दी गई, और कुछ कहते हैं कि वो हलाक नहीं किए गए, वल्लाहु आलम। लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन की राय यही है कि ये भी क्या थे, ये भी हलाक कर दिए गए थे। अजाब उन पर भी आया था और वो खुद बुराई नहीं करते थे, लेकिन दूसरों को बुराई से उन्होंने रोका भी नहीं था। बुराई से ना रोकना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। अजाब के बावजूद असहाबे सब्त हद से गुजर गए, तो अल्लाह तबारक ताला ने उनकी जो सूरतें हैं उसको मस्क कर दी और उनको बंदर बना दिया। तो ये हाल हुआ। तो ये हाल होता है जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, या दूसरा गिरोह वो था जब नाफरमानी अल्लाह की हद से बढ़ी तो उन्होंने उनको रोका भी नहीं किया, मना भी नहीं किया। हाफिज इब्ने कय्युम रहमतुल्लाह अलैह दीन में हीला के हराम होने के पर इसी आयत को दलील मानते हैं। वो लिखते हैं, इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ शैतान की एक फरेबकारी क्या है, ये दीन में हीला बनाना, दीन में बहाने बनाना, मक्र और धोखा को अपनी राह बना लेना, जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला की जो हराम की हुई चीज़ें हैं ना, उसको वो इंसान अपने ऊपर हलाल बना लेता है और फ़राइज़ को भूल जाता है और अल्लाह के हुक्मों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हीला की एक किस्म के ज़रिए के वाज हीला की एक किस्म के ज़रिए वाजिबात को वो क्या करता है, ख़त्म कर देता है। हराम चीज़ों को वो हलाल कर लेता है। जैसे शनिचर के दिन मछली के शिकार को जब उनको मना किया गया, तो हीले साज़ी, बहाने साज़ी से उन्होंने क्या किया, फ्राइडे को ही इन्होंने नेट लगा देते थे और फिर संडे को जाके वो निकाल लेते थे। काम तो उनका वही हुआ, शिकार तो उन्होंने किस दिन का हासिल किया ना, सैटरडे का। तो आज भी हमारे माशरे में ये जो बहाने होते हैं, ये हीले होते हैं, इनके ज़रिए से भी आज अल्लाह तबारक तआला की बहुत से अहकामात को पसे-पुश्त डाला जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर बिजली चोरी हराम है ना, चोरी हराम है, लेकिन फिर भी क्या वो कहते हैं, अरे हम क्या करें, कैसे करें, बिजली चोरी ना करें तो हम क्या, हमारा घर का कैसे चलेगा, और इतनी महँगी कर रखी है, ये सरकार ही ज़ालिम है, ये सरकार ही ऐसे वो है, ये हीले बहाने करके और इस तरीके से वो जो चोरी का काम करते हैं। फिर सूद है, सूद कहते हैं कि अरे इतना ज़्यादा नहीं है, और अल्लाह तबारक तआला ने और खोल के आयतें बयान की है सूरह बकरा में ना, कि जिसने सूद लिया उसने अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ जंग की, लेकिन उसके बावजूद हीले बहाने करते हैं कि नहीं, अरे हम तो दे रहे हैं ना, और हम तो बैंक से ले रहे हैं ना, और ऐसा नहीं और वैसा नहीं, इस मामले में भी लोग हीले बहाने करते हैं। फिर इसी तरह से आप देखें कि नमाज के बारे में, तो नमाज अल्लाह तबारक तआला ने फ़र्ज़ की है, तो फिर लोग इसको नमाज पे भी कायम नहीं रहते हैं, हीले बहाने करते हैं। अरे मेरा तो ऑफ़िस है और मेरा तो मेरी तो जॉब चली जाएगी और मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, मैं वैसा नहीं कर पाऊँगी। पूरी-पूरी एक नमाज़ आप देखिए, जब एक जो है ईंट गिरती है तो फिर सारी की सारी पूरी दीवार गिर जाती है। जब इंसान की एक नमाज़ छूटती है, फ़जर छूटती है, ज़ोहर छूटती है, तो फिर इस तरीके से उसकी पूरे दिन भर की नमाज़ छूट जाती है। फिर उसका मन ही नहीं लगता, फिर सोचता है छोड़ो, इशा में भी क्या करेंगे पढ़ के, हम तो थक गए हैं ना। तो इस तरीके से हीले-बहाने कर के इंसान ने अल्लाह के फ़राइज़ों से मुँह मोड़ रखा है। बहुत सी चीज़ों पे इंसान हीले-बहाने करता है। और जैसे सूद को उसने जायज़ करार दिया है हीले बहाने कर के। जहेज़ को भी कहते हैं, ये फ़ातिमी जहेज़ है इस तरीके से। जहेज़ के बारे में आज इतना ज़्यादा जो लोग आगे हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जिसकी गरीब की लड़की है उसको नहीं मिल पाता है, और जो जिनको अल्लाह ने दिया है तो वो तो पूरी नुमाइश लगाते हैं अपनी बेटी को उन्होंने क्या-क्या दिया है। पूरा बाकायदा वीडियोज़ वायरल होती हैं कि उन्होंने पूरा मर्सिडीज़ दे दी है, वो बंगलो दे दिए हैं, वो हर बाराती को उन्होंने सोने के नेकलेस और सेट्स दिए हैं, है ना? इस तरीके से जो गरीब है उसके दिलों पे वो ठेस पहुँचाते हैं। तो आप दें, कुछ भी दें अपने बच्चों को, लेकिन नुमाइश की क्या ज़रूरत है और हीले-बहाने करने की क्या ज़रूरत है? आखिर माँ-बाप की जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों की ही तो होती हैं, उसकी नुमाइश की क्या ज़रूरत है? फिर तो आपको करना ये चाहिए था कि बचपने से आपने जो भी अपने बच्चे को खिलाया, पिलाया, परवरिश की, उसकी भी नुमाइश आपको लगानी चाहिए थी, वो क्यों नहीं की आपने? तो दरअसल ये सब क्या है, अल्लाह ताला की हदों को पसे-पुश्त डाल देता है इंसान और हीले-बहाने करके हराम को वो हलाल कर लेता है। ठीक है? चलिए आयत नंबर 107 देखें। और जब आपके रब ने खबर दी कि वो क़यामत के दिन उनके खिलाफ ऐसे लोगों को उठाता रहेगा जो उन्हें बुरा अज़ाब देंगे। बेशक आपका रब जल्द सज़ा देने वाला है और वो बड़ा माफ़ करने वाला है और रहम करने वाला है। तो बनी इसराइल ऐसी सरकश कौम थी
कि वो सरकशी में इतना आगे बढ़ गई थी कि अल्लाह के हुक्मों की वो मुखालिफत करते थे और हीले और बहाने के ज़रिए हराम को वो हलाल बनाते थे। अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए इसी वजह से उनके ऊपर ज़िल्लत और रुसवाई को चस्पा कर दिया, उनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई, उनकी किस्मत बना दी गई और ये फ़ैसला कर दिया गया कि दुनिया की सारी कौमें उन्हें हमेशा आज़माइश में तरह-तरह से मुसीबतों में डाल रखेंगी। आज हमारे सामने मिसाल भी मौजूद है, इज़राइल और फ़िलिस्तीन की मिसाल। तो इंशाअल्लाह ताला जीत तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमा ही दिया कुरान में ना कि जीत तो हमेशा फ़तेह तो हमेशा ईमान वालों की ही होगी इंशाअल्लाह। तो इस तरीके से हमेशा ये जो है ज़िल्लत व ख़ारी में इनके ऊपर चस्पा रहेगी क़यामत तक की परेशान और आजिज़ी होते रहेंगे। सबसे पहले जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके ऊपर टैक्स लगा दिया, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बाबुल के बादशाह बुख्तनसर ने इनको मुल्क को तबाह कर दिया, औरतों, मर्द और बच्चों को गुलाम बना लिया। इनके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं और तमाम तरह से इनको ऊपर ज़ुल्म होता ही रहा। फिर हिटलर ने इनके कई लाख लोगों को ख़त्म कर डाला, मार डाला। तो हिस्ट्री उठा के देखें इज़राइल की, ज्यूज़ की कि किस-किस तरह से इनके ऊपर तबाहकारियाँ इनके ऊपर मुसल्लत हुई। तो ये किस वजह से वजह क्या थी? ये अल्लाह की यही आयत है। ये अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक तआला क्या फरमा रहे हैं? और जब आपके रब ने खबर दी थी कि वो क़यामत के दिन तक कि उनके खिलाफ ऐसे लोगों को उठाता रहेगा जो उन्हें अज़ाब देंगे। तो ये बनी इसराइल पर अल्लाह सुब्हानहू तआला का अज़ाब है कि वो क़यामत तक के लिए ऐसे लोगों को उठाता रहेगा जो बनी इसराइल को परेशान करते रहेंगे, उनके ऊपर अज़ाब पहुँचाते रहेंगे और उनके ऊपर सज़ाएँ, उनको तकलीफ़ उनके ऊपर चस्पा कर दी गई हैं। ठीक है? आयत देखिए आयत 168 और हमने उन्हें टुकड़े-टुकड़े करके उन्हें गिरोह में बिखेर दिया है और कुछ उनमें से नेक हैं और कुछ उनमें से अलग हैं और हम उन्हें अच्छी और बुरी हालत में डालकर आज़माते रहें ताकि वो बाज़ आ जाएँ। आयत 169 देखें। और फिर उनके बाद ऐसे नालायक लोग हुए जो किताब के वारिस होकर इसी दुनिया का सामान समेटते रहें और कहते हैं कि हमें ज़रूर माफ़ कर दिया जाएगा और हम इस जैसा और सामान भी उनके पास आ जाए तो उसे वो ले भी लेंगे। क्या उनसे किताब में इसका अहद नहीं लिया जा चुका कि अल्लाह पर कोई बात वो नहीं गढ़ेंगे सिवाय हक के और जो इसमें है वो खुद भी पढ़ चुके हैं और आखिरत का तो घर उन लोगों के लिए बेहतर है जो डर रखते हैं। तो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? आयत नंबर 167 से 168 तक की बनी इसराइल पर कयामत तक की आने वाले अजाब के कोड़ों के बारे में जिक्र है। इन आयत में बता दिया गया कि बनी इसराइल में जो है ना, जो अजाब है वो आता भी रहेगा और साथ ही साथ कुछ नेक लोग भी पैदा होते रहेंगे और वो हक को उनके सामने जब आ जाएगा तो वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे, उसको मान भी लेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ फरमा रहे हैं आयत नंबर 169 में बनी इसराइल का दरअसल हर दौर में यही हाल रहा है कि यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आ गया और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो यहूदी थे ना, उनका भी यही हाल बयान किया गया है कि वो नालायक लोग थे। उनकी सरकशियाँ थी बहुत ज़्यादा। हर खूबी उनसे रुखसत हो चुकी थी, यानी नेकियां उनसे जाती रहीं और तौरात के वो अहकामात को बदलकर दुनिया कमाना उनका क्या हो गया, बिजनेस हो गया था। रिश्वत लेकर तौरात के खिलाफ फैसले करते थे ना, पैसे वालों को तो बचा लेते थे और गरीबों को वो फंसा देते थे और अपने आप को वो धोखा देने के लिए कहते थे कि ना कि अल्लाह हमसे इन मामले में हमारा पकड़ नहीं करेगा और हमें तो माफ कर देगा। हालांकि वो अपने दिल में इस बात पर वो जमे रहते थे कि अगर किसी ने दोबारा भी उनसे रिश्वत दी तो वो दोबारा भी उससे ले लेते और वो दिल से तौबा भी नहीं करते थे। अल्लाह ताला ने इनके बारे में फरमाया है फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुम वरिथुल किताबा, तो पीछे आए उन लोगों के बाद ऐसे जानशी जो नाअहल लोग थे, जो किताब के वारिस ऐसे बने जो क्या थे, नालायक लोग थे, नाअहल लोग थे। ठीक है? तो ये इनके बारे में बताया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ऐसे लोग किताब के वारिस बने आगे चल के, यानी तौरात के वारिस ऐसे लोग बने जो नाअहल लोग थे, उस काबिल नहीं थे। वो उसके वारिस बन गए। तो उनका क्या करते थे, किताबों की आयत के बदले वो थोड़ी-सी कीमत ले लेते थे। लोगों के मनमाने फतवे दे देते थे, मनमाने चीज़ें वो दे देते थे आटों से निकाल के और थोड़ी-सी कीमत ले लेते थे। तो अल्लाह ताला के बारे में उनका हाकिमाना अंदाज़ भी देखिए कि वो उन्हें माफ़ भी कर देगा ना। अल्लाह पर वो इल्ज़ाम था। वो ये कहते थे ना कि सयग़फ़िरु लना, कि अनकरीब ना हमें अल्लाह ताला माफ़ भी कर देगा, क्योंकि हम अल्लाह के क्या हैं, लाडले हैं। वयातिहिम अरादू मिस्लहु याख़ुज़ू, और उस अहद और मीसाक की खिलाफ बात भी जो उनसे लिए गई थी और अल्लाह के बारे में सच्चाई से काम लेंगे और उन्हें तौरात पढ़ने से उस अहद का इल्म भी था। यानी वो जो थे कुरान पढ़ते थे, यानी उनकी तरफ जो किताब नाज़िल हुई थी, उनका जो कुरान था वो तौरात था
اس کو وہ پڑھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ہم جو اللہ کی اگر نافرمانی کریں گے تو ہمارا کیا ہونے والا ہے حال، اور وہ حق جانتے تھے، وہ باطل جانتے تھے، اور سب کچھ جاننے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو اس کے بعد بھی اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کی کامیابی دراصل وہ کامیابی ہے، دنیاوی کامیابی کیا ہے، وہ حقیر فائدے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر دنیا میں کوئی اگر انسان کو فائدہ ہو رہا ہے اللہ کی آیات کو فتوے نکال کر اور رشوت لے کر اور لوگوں کو منماہے فتوے دے رہا ہے انسان، تھوڑا سا فائدہ ہو رہا ہے، تھوڑی سی کامیابی ہو رہی ہے، وہ کیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ بہتر نہیں ہے بنسبت آخرت کی کامیابی کے۔ تو ان کی برائیاں یہاں پہ بتائی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جو ایسے لوگ تھے جو نا اہل جو تھے کتاب کے، وہ وارث بن گئے، تورات کی وارث بن گئے۔ تو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے نا کہ بنی اسرائیل کی اکثریت اللہ کی کتاب کی نا اہل وارث ثابت ہوئی، یعنی کتاب تو ان کو جو دی گئی وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ کتاب والے ہوتے، وہ تھوڑی سی قیمت لے کر کتاب کو بدل دیتے تھے اور لوگوں کو ان کے پسندیدہ فتوے دے دیتے تھے، ساتھ ہی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے بخش بھی دیا جائے گا کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہیں، حالانکہ وہ کتاب میں بات پڑھ کر چکے تھے کہ اللہ کی طرف سے ناحق باتیں کرنا کیا ہے، یہ جرم عظیم ہے، وہ جانتے تھے یہ جرم عظیم ہے۔ آیت دیکھیے، آیت 170۔ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، ہم بھلے اور نیک لوگوں کا اجر برباد نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے جو محبوب بندے ہیں ان کی 3 کوالٹیز بیان کی ہے۔ اس آیت میں اللہ کے محبوب بندوں کی اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بندوں کی 3 کوالٹیز بیان ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، پکڑ کے تھام کے رکھتے ہیں، اس کے حقوق ادا کرتے ہیں، اس کے حکم کو مانتے ہیں اور اس کے نواہی کو اس سے بچتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے کوئی جو ہے دیوار دیکھی ہے نا کہ جب مصری دیوار اٹھاتا ہے اس کی ہر اینٹ پوری پوری اٹھاتا ہے، کہیں بھی کوئی بھی ایک سوراخ نہیں چھوڑتا ہے، تو وہ پوری طرح سے جو ہے دیوار کو پوری طرح اٹھاتا ہے۔ اگر وہ دیوار ایسی اٹھائے کہ جگہ جگہ سے اس میں سوراخ ہوں اور پھر وہ نیچے سے پوری خالی ہو اور اوپر اینٹ رکھ دی جائے تو پھر وہ دیوار کہاں قائم ہوتی نا، وہ تو گر جاتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ تو جو نماز قائم کرتے ہیں یعنی کہ وہ ان کی نماز پوری طرح سے ہوتی ہے، کبھی ان کی نماز نہیں چھوٹتی ہے، مسلسل پکی طور پہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ کسی چیز کا ان کے اوپر آنا یا مصائب کا آنا یا شادی فنکشن کا ہونا ان کو نماز سے نہیں بھی چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور ان کی تیسری صفت یہ کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت 171۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلایا اور ان کے اوپر تھا جو ان کے اوپر تھا مانو کوئی سابان کے ہو، تو وہ سمجھے کہ ان پر وہ گرنا ہی چاہتا ہے، تو ہم نے انہیں گرنا ہی چاہتا تو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ سکو۔ تو اس آیت کے بارے میں ہم لوگ الحمدللہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور اس کا جو ہے واقعہ گزر بھی چکا ہے، آیت نمبر 63 کی سورہ بقرہ کی اور آیت نمبر 93 سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء میں بھی اس کا ذکر آ چکا ہے کہ واقعہ مختصر سا بتا دیتے، یاد دلا دیتے تاکہ آپ لوگوں کو یاد آ جائے کہ یہ واقعہ دراصل کیا تھا۔ واقعہ دراصل یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لائے نا بنی اسرائیل کے پاس، تو ان کے احکامات کو انہوں نے سنا، تو انہوں نے پھر حسب عادت کیا کیا، اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی عادت ہی تھی کہ انبیاء کی بات نہیں مانیں گے، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے سروں کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا تھا کہ مانو ابھی بس گرے گا اور وہ کچل ہی جائیں گے، جس سے وہ ڈرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے احکامات کو بجا لیں گے، اس کا انہوں نے عہد کیا تھا۔ تو یہ ان کو عہد ان کا یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم نے کیا عہد لیا تھا کہ اللہ کی بات مانو گے نا، اللہ کو احکامات کو بجا لاؤ گے، تو ان کا یہاں پہ عہد کو یاد دلایا گیا ہے۔ آیت نمبر 172 دیکھیے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آدم کی اولاد کی پیٹھ سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنایا اور پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے جو وعدہ لیا ہے اس کے بارے میں خطاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں
इससे पहले जो आयत थी, आयत नंबर 171 में बनी इसराइल को उनके अहद याद दिलाए गए, उसका जिक्र है। जबकि इस आयत में, आयत नंबर 172 में, उस अहद को याद दिलाया गया है, उस अहद का जिक्र है जो आदम के हर शख्स से लिया गया, यानी आदम के हर बच्चों से लिया गया है। कुरान और हदीस से इसकी तफसील यूँ मालूम होती है कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने ना हज़रत आदम को पैदा फरमाया, और पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक ताला ने उनकी पीठ के ऊपर, उनकी पुश्त पर हाथ फेरा और उनकी नस्ल से क़यामत तक की पैदा होने वाली औलाद की सारी रूहें सामने ज़ाहिर कर ली। उनकी रूहों को वही शक्ल अता की गई जो उनकी पैदाइश के बाद होने वाली थी। फिर उन रूहों से फरमाया, इस भरी कायनात को अच्छी तरह से देखो और बताओ कि तुम्हें यहाँ मेरे सिवा कोई और रब नजर आता है? तो उन सब रूहों ने मिलकर यही यकीन के साथ शहादत की कि तू ही हमारा रब है। ठीक है, तो यहाँ पर उस अहद अलस की याद दिलाई गई है कि जो सारे तमाम के तमाम इंसानों से लिया गया था। तो अहद अलस्त, इसको अहद अलस कहा जाता है। ठीक है, ये अहद अलस्त दरअसल आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उनकी पुश्त पर होने वाली तमाम औलाद से लिया गया था। तो यही इनसे अहद अलस लिया गया, तमाम इंसानों से लिया गया। तो अल्लाह तबारक ताला ने सारे इंसानों को पैदा कर दिया। आयत से ही पता चल रहा है ना, वही ज़खज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, और जब आपके रब ने आदम आदम औलाद की और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला। ठीक है, और उनसे उन्हीं के मुतालिक इकरार भी कर लिया। वअशहदुहुम अला अनफुसिहिम, और उनसे उनके मुतालिक इकरार कर लिया और कि तुम्हारा जो है ना, अलस्तु बिरब्बिकुम, कि तुम जानते हो तुम्हारा रब कौन है? तो उन्होंने कहा, क़ालू, तो उन्होंने कहा, बला शहीदना, कि हाँ बेशक हम जानते हैं और हम गवाह हैं कि आप ही हमारे रब हैं। तो इससे क्या पता चलता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर इंसान को, पूरे जितने भी इंसान है, सब के सब को तौहीद पे पैदा किया है। सब के सब तौहीद पर हैं, सब के सब तौहीद पे अल्लाह तबारक तआला ने सबको, सबकी फितरत में रख दिया कि वो तौहीद पर है। लेकिन दरअसल बस वही है ना कि शैतान इंसान के पीछे लगा रहा और फिर इंसान गुमराह हो गया। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने हमारी फितरत के अंदर क्या रखा है? तौहीद रख दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये अल्लाह तबारक तआला ने सारे इंसानों को अहद अलस भी याद दिलाया है कि सारे इंसानों से अल्लाह तबारक तआला ने ये अहद लिया था कि तुम दुनिया में जाके ना किसकी इबादत करोगे? उन सब ने कहा था कि अल्लाह तबारक तआला हम सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करेंगे। और दुनिया में आके वो उस अहद को भूल गए हैं। लेकिन जो कुरान पढ़ते हैं, जो कुरान का मुताला करते हैं, जो इस आयत से गुजरते हैं, उनको वो अहद क्या तो उनको वो अहद क्या होता है? याद आ जाता है कि हाँ वाक़ई में अल्लाह तबारक तआला ने हमसे वो अहद लिया था कि बला शहीदना, बेशक हम क्या हैं? हम गवाह हैं कि हम अल्लाह आपकी इबादत करेंगे। ठीक है, आयत देखिए, आयत नंबर 173। या यूं कहो कि पहले पहल शिप तो हमारे बड़ों ने किया है और हम उनके बाद उनकी नस्ल में हुए, सो क्या उन गलत राह वालों के फाल पर तो हम तुमको हलाकत में डाल देंगे। आयत नंबर 172 से आयत नंबर 174 तक की किसके बारे में जिक्र है? अहद अलस्त के बारे में जिक्र है। ठीक है, तो इन आयात में अहद अलस्त का जिक्र है। अल्लाह तबारक तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में क़यामत तक की पैदा होने वाले तमाम इंसानों की अरवाह जमा करके उनसे पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने जवाब दिया था, हाँ आप ही हमारे रब हैं। तो इस अहद की यादानी इस आयत से कराई गई है कि कोई ये ना कह सके कि मुझे ये अहद याद नहीं, और या फिर ये उज़र ना पेश करके कि शिर्क का आगाज़ हमारे क्या है? बाप दादा ने किया था और हमें ये जुर्म उनकी तरफ से मिला, तो लिहाजा हमारा कोई कसूर नहीं है। ताकि लोग ये क्या ना करें, ये उज़्र ना पेश करें जो आयत नंबर 173 में कहा जा रहा है, या वो यूँ ना कहें कि पहले पहल शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया था और हम उनके बाद उनकी नस्ल में से हुए, सो क्या उनके गलत राह वालों के करने में तू हमको हलाकत में डाल देगा? ताकि वो ये उज़्र ना उस दिन पेश करें अल्लाह के आगे क़यामत के दिन। ठीक है, या फिर जो है ना, वो ये ना कहें, आयत देखिए, आयत नंबर 174, हम इसी तरह आयत को साफ-साफ बयान करते हैं और ताकि वो बाज़ आ जाए। हर चीज़ अल्लाह तबारक तआला ने खोल करके वाज़ेह बयान कर दी है, तो इंसान क्या करे? बाज़ आ जाए। आयत 175 देखिए।
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں سے شامل ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسے آدمی کی بارے میں خبر دی ہے جسے اللہ نے آسمانی کتاب کا علم دیا تھا، جس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس میں موجود ہر دلائل سے وہ فائدہ اٹھا کر اللہ سے اپنا رشتے کو مضبوط کر لے، پکا کر لے اور تقوی کی زندگی وہ اختیار کرتا رہے۔ لیکن معاملہ کیا ہوا، اس کے الٹ ہو گیا۔ اس نے جسے کتاب کا علم دیا گیا تھا، اس نے دنیاوی فائدے جو ہے لے لیے، اور اللہ کا کیا کیا، اس نے انکار کر دیا، اور اس نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا، پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی کہ اس کی کوئی احکامات کو نہیں لیتا تھا، اور دامن چھاڑ کر اس سے ایسا الگ ہوا جیسے کوئی جو ہے سانپ اپنے جو کیچو سے باہر آ جاتا ہے۔ اور جب وہ اس حال کو پہنچ گیا تو شیطان نے اسے اچک لیا اور اسے اپنا دوست بنا لیا اور ساتھی بنا لیا، جو اسے ہر طریقے کی ضلالت، گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں وہ پہنچا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایسا وہ شخص جسے قرآن کا علم دیا گیا تھا، جسے اپنی آسمانی کتاب کا علم دیا گیا تھا، لیکن وہ جب وہ دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، تو اس کا حال، جب اس کی دنیا کے پیچھے وہ جب لگ گیا تو پھر اس کا حال کیا، وہ ضلالت اور اندھیرے میں، گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم ہو گیا، اور پھر ساتھ ہی اکیلا نہیں رہتا، اس کے ساتھ اس کا جو ساتھی ہوتا ہے، کون ہو جاتا ہے، شیطان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ تو ایسے لوگوں کو وہ جو پیچھے کی کون پڑ جاتا ہے، شیطان پڑ جاتا ہے، اور وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 176۔ اور اگر ہم چاہتے اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، اس کی حالت اس کتے سی ہو گئی کہ اگر تو اس کو حملہ کرے تب بھی وہ ہانفے گا، یا اس کو چھوڑ دے تو تب بھی وہ ہانفے گا۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ آپ اس کا حال بیان کر دیجئے کہ شاید وہ لوگ کچھ سوچے، کچھ غور و فکر کرے۔ تو بہت ڈرانے والی آیت ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جب اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو اس سے پہلے کے جو لوگ گزر چکے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کی قوم، وہ بھی کہتے ہیں عالم تھے، جانتے تھے، سب معلوم تھا ان کو، لیکن انہوں نے اللہ کی جو ہے نافرمانی کی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ تو آیت نمبر 175 سے آیت نمبر 178 تک ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، اپنی خواہشاتوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، خواہشات کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال کیا ہے، کتے سی دی گئی ہے، وہ کتے کے جیسے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ کس کی مانند ہے، کتے کی مانند ہے، جو لالچی قسم کا ہوتا ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہے کتا لالچی ہوتا ہے، ہر وقت وہ بس اپنی زبان باہر نکالے رکھتا ہے، کھانا پیٹ میں بھرا ہونے کے بعد بھی اس کی زبان کیا ہوتی ہے، باہر رہتی ہے، وہ بس لالچ میں اس کی زبان باہر رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو آسمانی کتاب کی بدولت اسے آسمان کی طرف کیا کرتے، بلند مرتبہ عطا فرما دیتے، لیکن وہ اس کے لائق ہی نہیں تھا۔ اس نے دنیاوی فائدوں کو الگ کر دیا اور اپنے نفس کو غلام بنا لیا، یعنی وہ نفس کا غلام خود بن گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے دنیاوی فائدوں کو زیادہ امپورٹنس دی اور اپنے نفس کو کیا کیا، وہ اس کا خود غلام بن گیا، نفس کا غلام بن گیا، اور دنیا کا اس کا جو مقصد ہے، وہ دنیا اس کی مقصد رہی، مین اس کا جو گول تھا وہ دنیا ہی بنی۔ تو ایک فائدہ حاصل ہوا تو دوسرے پیچھے کے پیچھے وہ دوڑنے لگا، یعنی کہ جب دنیا کا کوئی ایک کسی کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، پھر اسی کے پیچھے دوڑ لگانے لگتا ہے، اور اسی حصول دنیا میں وہ حیران پریشان رہتا ہے، اسے کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔ تو اس کی جو مثال ہے وہ کتے کی طرح ہے، جو ہر حال میں زبان نکالے ہانفتا ہی رہتا ہے، چاہے وہ دوڑ رہا ہو، چاہے وہ بیٹھا ہو، چاہے جو شخص جو ہے آسمانی کتاب کا علم رکھتا ہے تو اسے اس جو ہے ایمان اور نیک عمل کا فائدہ نہیں وہ اٹھاتا، اسے چھوڑ دیتا، اور کفر کی اور نافرمانی کی راہ جو ہے اختیار کرتا ہے، تو اس کی مثال ہر دور میں اس کتے سی ہے جو ہر حال میں زبان نکالے ہانفتا رہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ لالچی کتے کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے جو ہر وقت زبان باہر نکالے رکھتا ہے۔ تو وہ جو شخص جسے قرآن کا علم دیا گیا، اس سے بات معلوم، اور پھر بھی وہ کیا ہے، زبان
बाहर निकाले रखता है ना, कुत्ता ज़बान बाहर निकाले रखता है, तो फिर वो जो लालची शख्स है, ख्वाहिशात की पैरवी करने वाला, हर वक़्त उसकी दुनिया उसका मकसद हो जाती है, दुनिया के लिए जीना, दुनिया के लिए खाना, दुनिया के लिए बस ज़िंदगी गुज़ारना। तो वो क्या है दरअसल, ऐसा वो शख्स है कि उसकी मिसाल कुत्ते सी है। कुरान करीम में आपको ये आयत कहीं नहीं मिलेगी, ये वाहिद यहाँ पे यही आयत आई है और ऐसे लालची शख्स के बारे में ज़िक्र है, जो जानते-बूझते हर बात उनको मालूम है, उसके बाद भी अल्लाह के अहकामात की नाफ़रमानी करते हैं। उनका यहाँ ज़िक्र है, तो हुक्म आम है, इसमें बहुत बड़ी वईद है उन उलमाओं के बारे में, जो दुनिया की थोड़ी-सी लज़्ज़तों के लिए आखिरत को भुला देते हैं। जो दुनिया की थोड़ी-सी लज़्ज़तों के लिए आखिरत को भुला देते हैं और दुनिया ही के पीछे वो लग जाते हैं। तो जब भी कुरान का इल्म हासिल करें, अल्लाह से यही दुआ करें, अल्लाह तबारक तआला इसके अहकामात को हमारे अमल में डाल दे और हमारी जो नफ़्सानी ख़्वाहिशात हैं ना, अल्लाह हमें इससे बचाए और हमारी ज़िंदगी का मकसद आखिरत हो, आखिरत। दुनिया की हमारा मकसद ना हो। तो आप जब आखिरत आपका मकसद होगा ना, तो अल्लाह तबारक तआला दुनिया भी आपके कदमों में डाल देंगे। लेकिन जब किसी का मकसद कुरान करीम को हासिल करना इसलिए होता है, कुरान करीम का इल्म हासिल इसलिए करता है कि हमें दुनिया में लोग आलिमा कहें, मुअल्लिमा कहें, बाजी कहें, उस्ताज़ा कहें और फला-फला कहें, हमें इज़्ज़त दें, हमें रिस्पेक्ट दें, तो फिर क्या होता है, तो उसको वो तो मिल तो जाता है, लेकिन आखिरत में क्या वो खसारा पाने वाले हैं। ठीक है? आप कुरान करीम का इल्म इसलिए हासिल करें कि अल्लाह की रज़ा आपको मिल जाए, अल्लाह की क़ुर्बत आपको नसीब हो जाए, आखिरत की कामयाबी मिल जाए। तो इस मकसद को आगे रख कर कुरान करीम का इल्म हासिल करें और अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह ताला जो भी मैंने पढ़ा सीखा है ना, मेरे अमल का हिस्सा बना दे और मेरे ज़रिए से औरों को भी हिदायत अता फ़रमा। तो बस अल्लाह ना करे ऐसा किसी की भी मिसाल हो, मैं तो यही दुआ करती हूँ अल्लाह तबारक तआला जो भी कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं, सब क्या है, उनका मकसद आखिरत हो, किसी का भी मकसद दुनिया ना हो, वरना ऐसे शख्स की मिसाल किसके बारे में बताई गई है? वो कुत्ते की मिसाल उसकी दी गई है। तो हिर्स और हवस वाला जो कुत्ता होता है, हर हाल में उसकी ज़ुबान बाहर निकली रहती है, तो ऐसा वो शख्स बन जाता है कि उसके अंदर हवस पैदा हो जाती है, हर वक़्त उसे दुनिया बस दिखती है, दुनिया के पीछे बस लगा रहता है। तो अल्लाह तबारक तआला हम सबकी हिर्स और हवस दुनियावी लालच से हम सबकी हिफाज़त फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आयत देखिए, आयत नंबर 177। बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया है और वो खुद ही अपने ऊपर ज़ुल्म करते रहे हैं। आयत 178, जिसे अल्लाह सीधी राह दिखाए, वही सीधी राह पाने वाला है और जिसे वो गुमराह कर दे, तो ऐसे ही लोगों का नुकसान उठाने वाले हैं। तो ऐसे ही लोग क्या हैं? खसारा पाने वाले हैं। आयत देखिए, आयत 179। और हमने बहुत से जिन्नों और इंसानों को जहन्नुम के लिए फैला रखा है। उनके पास दिल है लेकिन उससे समझते नहीं और उनकी आँखें हैं मगर उससे देखते नहीं और उनके कान हैं मगर उनसे वो सुनते नहीं हैं। वो लोग चौपाइयों की तरह हैं बल्कि उनसे भी भटके हुए हैं, उनसे भी ज़्यादा भटके हुए हैं। यही वो लोग हैं जो गफ़लत में पड़े हुए हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर जो है कुछ लोगों की मिसाल दी है कि कुछ इंसानों को और जिन्नातों को अल्लाह तबारक तआला ने इसलिए पैदा किया है कि वो लोग जहन्नुम के ही जो है ना जहन्नुम में ही जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आयत नंबर 179 में गाफिल इंसान को ना जानवर से तदबीर दी गई है। जानवर की मिसाल है। जैसे एक जानवर होता है ना उसके ऊपर आपके कहने, सुनने का कोई असर नहीं होता। आप देखिए एक नॉर्मल सा जानवर होता है उसके ऊपर भी आप असर होता है। आप देखिए कि इंसान ना जानवर के स्तर से भी गुज़र चुका है, नीचे गिर गया है। तो इस आयत में खबरदार किया गया है इंसान और जिन्नात की अक्सरियत क्या है? जहन्नुम में जाएगी, जहन्नुम में जाने वाली है। क्योंकि दरअसल उनके दिलों का जो है उनके दिलों में हिदायत नहीं उतरी और उनके सामने हक आने के बाद भी उन्होंने उसको लिया नहीं, निगाहों से उन्होंने अल्लाह की जो है ना हक नहीं पहचाना। कान होते हुए भी उन्होंने अल्लाह ताला के हक को ना सुना और ना उस पे अमल किया और उन सब से वो महरूम रह गए। कोई नसीहत, कोई आफ़त, कोई हादसा उन्हें अपने जो है इस्लाह के सुधारने का उनका कोई भी बहाना नहीं बना। यानी कि उनके सामने ऐसा नहीं था कि कोई भी उनके सामने नसीहत नहीं आती और आफ़त नहीं आती या आज़माइश नहीं आती या परेशानी नहीं आती, लेकिन ये सब ना उनकी हिदायत का इंतज़ाम नहीं करा सके। तमाम नसीहत, आफ़त, परेशानी, आज़माइश आने के बाद भी उनके अमल वैसे की वैसे ही रहे। तो इस तरह जो गाफ़िल लोग हैं ना वो जानवरों की तरह से बल्कि जानवरों से भी ज़्यादा गैर गुज़रे हैं। जैसे आपने
बचपन से एक मुहावरा सुना होगा ना कि भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़ी पगुराए, है ना? कि बजाने वाला जो बीन बजाने वाला है भैंस के आगे चाहे जितनी बीन बजाए उसको ना भैंस को कुछ भी सुनाई नहीं देता, कुछ भी असर नहीं होता। बस वो तो अपना बस मुँह चलाती रहती है, मुँह चबाती रहती है, पगुराती रहती है। तो वही हाल है इन लोगों का जिनके पास जो है अल्लाह की आयात आई, हक आया, बय्यिनात आई और तमाम तरीके की हिदायत का इंतज़ाम हुआ, लेकिन उनके आमाल नहीं सुधरे, उनके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। उनको हिदायत का कोई भी असर नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों की मिसाल क्या है, यहाँ पे जानवर की तरह दी गई। ये भी आपको आयत जो है कुरान करीम में ऐसी आयत कहीं भी नहीं मिलेगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ यहीं मिलेगी। ये वाहिद ऐसी आयत है जिसमें इंसानों को यानी ऐसे इंसानों को जिन्होंने जानते-बूझते हक को कबूल नहीं किया, हक को देखा नहीं, उस पे अमल नहीं किया, हक को ठुकरा दिया, तो उनकी मिसाल क्या है? जानवर की जैसी है और बल्कि जानवर से भी ज़्यादा गैर गुज़री है, ठीक है? कान होते हुए उन्होंने हक को ना सुना, आँखें होते हुए भी उन्होंने हक को नहीं देखा, दिल होते हुए भी उन्होंने हक की तस्दीक नहीं की, तो फिर ये क्या है? ऐसे लोग जानवर हैं। तो ऐसे ही लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहन्नम के लिए पैदा कर दिया है। क्योंकि लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून उनके पास दिल तो थे लेकिन उससे वो समझ नहीं रखते थे। वलहुम आयुनुन और उनके पास आँखें थी लेकिन उसके ज़रिए से हक़ को नहीं देखते थे। ला युबसिरूना बिहा नहीं वो हक़ को देखते थे। वलहुम आज़ानुन और उनके पास जो थी ना आँखें भी थीं। उनके पास जो ना उनके कान भी थे। वलहुम आज़ानुन और उनके पास कान भी थे। ला यस्मऊना बिहा लेकिन वो उससे हक़ को नहीं सुनते थे, सच को नहीं सुनते थे। उलाइका कल अनाम यही लोग हैं जानवरों की तरह। बल हुम अदल बल्कि उनसे भी ज़्यादा गैर गुज़रे हैं। उससे भी ज़्यादा गैर गुज़रे लोग हैं। ठीक है? उलाइका हुमुल गाफिलून और यही लोग ऐसे हैं जो गफ़लत वाले वाले हैं, गफ़लत बरतने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको गाफिलों में से ना फरमा। अल्लाह हम सबको गाफिलों में से ना फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत देखिए आयत नंबर 180 वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। अल्लाह ही को मौसम और अल्लाह ही को मासूम किया करो और ऐसे ही लोगों से ताल्लुक भी ना रखा करो जो उसके नामों में कजरवी करते हैं। आयत देखिए आयत नंबर 180 और अच्छे-अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं। सो उसके नामों से अल्लाह ही को मौसूम किया करो और ऐसे लोगों से ताल्लुक भी ना रखा करो जो उनके नामों में कजरवी करते हैं और उन लोगों को उनको जो है ना ज़रूर सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है कि अल्लाह तबारक तआला को पुकारा करो अल्लाह के अच्छे-अच्छे नामों से। अल्लाह को उनके अच्छे नामों से पुकारा करो। तो अल्लाह के अच्छे नामों से मुराद क्या है? अल्लाह के वो नाम हैं जिनसे उसकी मुख्तलिफ सिफ़ात और असमत और कुदरत और ताकत का इज़हार होता है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना और अल्लाह के लिए क्या है? नाम अच्छे-अच्छे हैं। उनको अच्छे-अच्छे नामों से पुकारो। फदऊहु बिहा उनको अच्छे नामों से पुकारो, अल्लाह को अच्छे नामों से पुकारो। तो हदीस में आता है उनकी तादाद 99 यानी एक कम 100 बताई गई है और फरमाया कि जो उनको शुमार करेगा, ठीक है? अब शुमार करने की भी आपको वज़ाहत करते हैं। तो हदीस में आता है जो उनको शुमार करेगा तो जन्नत में वो दाखिल हो जाएगा। और अल्लाह ताला ताक है, वो ताक को पसंद फरमाता है। यानी 99 है, 100 नहीं, ये ताक है, ताक गिनती है। ठीक है, बुखारी की हदीस थी। तो शुमार करने का मतलब क्या है? शुमार करने का मतलब ये है कि उन पर ईमान लाए, अल्लाह की सिफ़ाती नामों पर भी वो ईमान लाए या उनको जो है ना वो रोज़ पढ़ा करे या उनको एक-एक करके ना बतौर तबरुक और इख़लास के साथ उसको पढ़ना शुरू करे, उसके माने मफ़हूम को भी जाने। या उनको हिफ्ज़ कर ले और उनके मानों को भी जाने और उनकी तदब्बुर करे, गौर-फ़िक्र करे। जब अल्लाह ताला के 99वें नामों को इंसान गौर-फ़िक्र करता है, तदब्बुर करता है ना, तो उसको अल्लाह की बहुत डीपली गहरी मालूमात और जो गहरी पहचान होती है। अल्लाह के नामों के ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है बंदों को और अल्लाह की मारिफ़त भी उसको हासिल होती है। तो ये होता है शुमार करने का मतलब। तो डेली पढ़ा करें अल्लाह के 99 नाम हैं। उसको कोशिश करें, हिफ्ज़ भी करें। अब जो यहाँ पे लफ्ज़ आया है युल्हिदूना वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइही कि छोड़ दीजिए उन लोगों को जो कजरवी करते हैं अल्लाह के नामों के बारे में। युल्हिदूना जो अल्फ़ाज़ है वो इल्हाद के माने में है, ठीक है? तो इल्हाद के माने किसी एक तरफ का माइल हो जाना है, ठीक? इल्हाद के मायने जो युल्हिदूना जो लफ्ज़ है उसके माने क्या है? इल्हाद है और इल्हाद का माना क्या है कि एक ही तरफ माइल हो जाना। दीन में इल्हाद इख्तियार करने का मतलब क्या है? कजरवी और गुमराही इख्तियार करना है। अल्लाह के नामों में इल्हाद यानी कजरवी की 3 सूरतें हैं। पहला अल्लाह के नामों में तब्दीली कर दी जाए। जैसे मुशरिकीन ने कहा मसलन अल्लाह का जो एक ज़ाती नाम है ना, अपने बुत का नाम जो है रख लिया लात और उसके सिफ़ाती नामों में से उसका नाम रख दिया। यानी कि अल्लाह तबारक तआला का जो नाम अज़ीज़ुन है ना, तो इसी से उसने उज़्ज़ा बना लिया। ठीक है? और दूसरा अल्लाह के नामों में से अपनी तरफ से इज़ाफ़ा करके उसको इज़ाफ़ा कर देना, जिसका हुक्म भी नहीं दिया गया है।
تو اپنی طرف سے اللہ کے ناموں میں کوئی بھی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ یہ کیا ہو جائے گا؟ الحاد ہو جائے گا، ٹیڑھا پن ہو جائے گا۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں کمی کر دی جائے، مثلاً جیسے کسی ایک ہی مخصوصی یا جو نام ہے اسی سے پکارا جائے اور دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے صرف اللہ اللہ پکارے یا اللہ کے جو صفاتی جو 99 نام ہے اس کو وہ کبھی بھی نہ پکارے، تو یہ بھی کیا ہے؟ الحاد ہے۔ تو اللہ کے 99 نیم ہیں، چاہے جس سے بھی اللہ کو پکارے اور اللہ کے قربت حاصل کریں، اور اللہ کے یہ سب نام ہیں ان کو پڑھیں لکھیں اور کیا نہ کریں، بس حد سے تجاوز کرنے والے نہ ہوں۔ تو اللہ کے 90 نام ہیں، جب بھی انسان اس کو یاد کر لیتا ہے، اس کو حفظ کر لیتا ہے، اس پہ تدبر کرتا ہے تو وہ ضرور انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا، بس بشرطے یہ کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، ٹھیک ہے؟ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔